کراچی کے کھلے مین ہال سے مسلسل خطرہ بن گئے، ایک اور معصوم بچی مین ہال میں جا گری۔ کھلے مین ہال میں گرنے والی بچی کو موقع پر موجود لوگوں نے نکال لیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کراچی کے کھلے مین ہال سے مسلسل خطرہ بن گئے، ایک اور معصوم بچی مین ہال میں جا گری۔ مین ہال میں گرنے والی بچی کو موقع پر موجود لوگوں نے نکال لیا۔ یہ فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی ہے جو مین ہال میں گری۔ 2 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 3 سالہ ابراہیم مین ہال میں گر گیا تھا اور 15 گھنٹے کے بعد اس کی لاش نکالی گئی تھی، اور ہماری انتظامیہ اتنی فیل ہے کہ وہ اس 15 گھنٹے میں بھی کچھ نہیں کر سکی۔ ایک لڑکا جو ایک دکان پر کام کرتا ہے اس نے مدد کی، اس نے وہ بچے کی لاش نکالی۔ آج ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، یہ بچی جو ہے وہ گٹر میں گری، لیکن ایک خوش قسمتی کہیے کہ وہاں پر لوگ موجود تھے، انہوں نے فوراً سے اس بچی کو، یا گٹر کی گہرائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ایزیلی انہوں نے اس بچی کو نکال لیا۔ شایان علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شایان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ مین ہال جو ہے مسلسل خطرہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور معصوم بچی جو ہے مین ہال میں جا گری ہے۔ واقعے کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کھلے مین ہال میں جو ہے گرنے والی بچی کو موقع پر موجود لوگوں نے جو ہے خود کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنی مدد سے کہ آپ جو ہے وہاں پہ بچایا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو میں جو ہے ننھی بچی کو گٹر سے نکالنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ کیچڑ سے بھری ہوئی نکلی ہے۔ ویڈیو جو ہے ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ گلشن اقبال قریبی کوئی علاقہ وہاں کی لگ رہی ہے، جبکہ اس پہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ واقعے کی ویڈیو سے متعلق جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ کب ہے اور کہاں پیش آیا ہے، تحقیقات اس میں جب سامنے آئیں گی تو آگاہ کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ شہر قائد میں جو ہے اس طرح کئی علاقے ہیں جہاں پر جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکایات آ رہی ہیں، جب کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس پہ کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو جس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کی جو ہے شکایات ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بچی کا واقعہ آیا ہے، اور اس سے قبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جس کے باوجود بھی جو ہے انتظامیہ کے کان میں جو ہے وہ جوں تک نہیں ہلتی، جس کے بعد کوئی اس طرح کا بڑا رونما ہو جاتا ہے واقعہ، پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس اور وضاحتیں، پھر ایک دوسرے پہ جو ہے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جو کام بنتا ہے جن اداروں کا ان کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی ماتحت جو ہے ان کے کوئی اس طرح کا جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ ہو۔ اب یہ گزشتہ 2 روز قبل کا واقعہ تھا، اس کے بعد آج یہ بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ نہ جانے کہ شہر کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی جو ہے ہم جہاں سے گزرتے ہیں، کوریج کرنے جاتے ہیں ڈیوٹی کے دوران، یا پھر جو ہے گھر آتے جاتے دیکھتے ہیں، تو اس دوران بھی ہمیں کئی اس طرح کے مین ہول جو ہے کھلے نظر آتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ قیمتی جانیں ہیں اور ان کو جو وہ بالکل قیمتی سمجھے، اور اسی طرح جو ہے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ نہ صرف انتظامیہ کو تو اس پہ جو ہے مین ہولز بند کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ ماں باپ کو بھی جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرے، کیونکہ جو 2 روز قبل کا واقعہ پیش ہے جس میں جو ہے ماں باپ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بچہ جو ہے ابراہیم بھاگا تھا، اور اس کے بعد جو ہے موت کے گھاٹ اترتے ہوئے اس کو دیکھا گیا، اور کس طرح جو ہے وہ سچویشن بنی تھی۔ پورے کا پورا جو وہ کہہ سکتے کہ شہر جو ہے اس پہ غمزدہ ہے، کیونکہ معصوم بچہ تھا 3 سالہ کا۔ اب اس پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے تمام تر ٹاؤن چیئرمینس کو جو ہے ہدایت جاری کرے کہ تمام اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ کہاں کہاں جو ہے گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، مین ہولز نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی چوری کرتے ہوئے موالی یا کہا جاتا ہے کہ جو نشاور افراد ہوتے ہیں وہ ان کے ڈھکن چوری کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کون کرے گا؟ انتظامیہ کو بنتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے اور شہریوں کی جانیں ان کو محفوظ بنائے۔ جی، سندھ اسمبلی میں غیر معمولی صورتحال، حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے 2 روز قبل معصوم بچے کے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہونے کو دلخراش واقعہ قرار دیا۔ سندھ اسمبلی کے تمام پارلیمانی گروپوں پر مشتمل جامع کمیٹی تشکیل دے کر ذمہ داروں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان۔ اجلاس میں گیس کی قلت، ہنرمند خواتین کی تربیت اور نیاز اسٹیڈیم میں کرکٹ کی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق اہم قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی میں آج سیاسی مخالفین بھی یک زبان ہو گئے۔ مختلف قراردادیں متفقہ طور پر منظور ہو گئیں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ 2 روز قبل معصوم بچے کا مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونا نہایتی دلخراش واقعہ ہے۔ اس معاملے پر سندھ اسمبلی کے تمام پارلیمانی گروپوں پر مشتمل ایک جامع کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں سینئر افسران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اس واقعے نے تو ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اور ایک ایسا میکینزم بنایا جائے، ایک طریقہ کار بنایا جائے کہ کہیں بھی اس طرح کا جو ہے دوبارہ واقعہ نہ ہو، اور جو لوگ کی نیگلیجنس ہوگی ان کو سخت، ظاہر ہے جو کمیٹی ہے ہمارے ممبران کی، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہوگا۔
इजलास में एमक्यूएम की जानिब से सुई गैस की कमी पर आमिर सिद्दीकी, हुनरमंद खवातीन की तरबियत से मुतालिक फराज सुहेल और नियाज स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस की बहाली के लिए साबिर कायम खानी की पेश करदा करारदादों की हुकूमती बेंचेस ने भी मुखालफत न की। इस मौके पर सूबाई वज़रा अजरा पीचूहो, सईद गनी और जाम खान चोरों ने भी करारदादों पर इजहार ख्याल किया। शर्जील मेमन ने तहरीकों की हिमायत करते हुए कहा कि सिंध गैस पैदा करने वाला सूबा है, लेकिन यहाँ के अवाम ही गैस से महरूम है। ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए। सर, ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, इसके ऊपर बहस करवा लें। पूरे शहर में सुई गैस नहीं है, और जबकि सुई गैस आपने रेजोल्यूशन पढ़ लिया। आमिर साहब जरा मुझे मिनिस्टर साहब से पूछने दें। आप जी मिनिस्टर साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे या चावला साहब, क्योंकि रेजोल्यूशन आमिर साहब ने पढ़ी, आप अपोज कर रहे हैं या? सर, हम अपोज नहीं कर रहे हैं। ये सुई गैस वाला रेजोल्यूशन ना सर? जी जी जी, हम उसको अपोज नहीं कर रहे, भले ये पेश करें जी। और आमिर साहब को तो अपोज कर ही नहीं सकते सर। इजलास में सरकारी मुलाजमतों में उम्र की रियायत और ई चलान से मुतालिक करारदादों को स्पीकर ने अदालती मामला होने के बायस मुस्तरद कर दिया। आप सिंध असेंबली को उस जगह क्यों ला रहे हैं जहां पे हम किसी ऐसे मैटर पे डिस्कस करें जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है? आपको ये रेजोल्यूशन लानी ही नहीं चाहिए थी इफ ऑलरेडी मैटर इज इन कोर्ट। लियाकत अली खान की बरसी पर तातील के मामले को स्पीकर ने आइंदा हफ्ते तक मौखर कर दिया। इजलास जुम्मे के रोज सुबह मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ आजिज जमाल, ये सिटी 21। वही जला जिसे लोग खाक समझते थे। गुलशन इकबाल बेनजीर कॉलोनी का रहायशी 15 साल तनवीर गोपांग इंसानी खिदमत की मिसाल बन गया। गटर में गिरे इब्राहिम की 15 घंटे निशानदही ना हो सकी। परचून की दुकान पर काम करने वाले तनवीर ने लम्हों में मसला हल कर दिया। एसएसपी ईस्ट और एसएचओ अजीज भट्टी ने हौसला अफजाई की। गुलशन इकबाल बेनजीर कॉलोनी का रहायशी 15 साल तनवीर गोपांग इंसानी खिदमत की मिसाल बन गया। गटर में गिरे इब्राहिम की 15 घंटे निशानदही ना हो सकी। परचून की दुकान पर काम करने वाले तनवीर ने लम्हों में मसला हल कर दिया। एसएसपी ईस्ट और एसएचओ अजीज भट्टी ने हौसला अफजाई की। सिटी 21 की खबर पर डीसी सेंट्रल तोहा सलीम का फौरी एक्शन। खुले मैन हॉल बंद करने, घड़े भरने के लिए हंगामी इजलास तलब। असिस्टेंट कमिश्नर्स, यूसी चेयरमैन, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अमले की शिरकत। 3 दिन में तमाम खुले मैन हॉल और घड़े भरने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया रिजवान कि आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज डीसी सेंट्रल साहब की सदारत में एक बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, जिसमें ग्राउंड लेवल के ऊपर जो यूसी चेयरमैन मौजूद होते हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, अलॉन्ग विद एक्सीएन एवरेज ऑफ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। तो हम एक लाइजोन इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस हंगामी बुनियादों के ऊपर तमाम मेन होल्स को आइडेंटिफाई करें, इनका सर्वे करें और विद इन 3 डेज तमाम मेन होल्स के ऊपर जो कवर्स हैं वो सप्लाई करें। ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी। इमरजेंसी सिचुएशन है और इस चीज़ में ह्यूमन लाइफ्स को सेव करने से बढ़कर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो जहाँ तक ये वसाइल की बात है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। वसाइल इन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं और इन तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए इनकी राइट प्लेसमेंट की ज़रूरत है बस। तो हम इंशाल्लाह ताला ये मैन होल्स प्रोवाइड भी करवाएंगे और तमाम मैन होल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है विद इन 3 डेज़ आपको लगते नज़र भी आएंगे। आप जी आज जो मीटिंग करी है, मीटिंग करने में यही मकसद था कि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीज़ है, जो छोटी इंटरनल रोड्स के ऊपर, लिंक रोड्स के ऊपर जो इश्यूज दरपेश आ रहे हैं उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए और रेलेवेंट इदारों के साथ मीटिंग की गई है ताकि रेलेवेंट इदारे उनकी बैकफिलिंग भी करते रहें। तो ना सिर्फ मेन होल्स के कवर बल्कि जितने भी आज आगे में हैं तो उनकी बैकफिलिंग भी साथ साथ इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर की जाएगी। शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में गटर पर ढक्कन ना होने के बायस शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अख्तर कॉलोनी की यूसी नंबर 6 और 1 की गलियों में खुले मैन हॉल बच्चों और शहरियों के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। मकीन कहते हैं कि मोटरसाइकिल और रिक्शा इन खुले मैन हॉल्स में फंस जाते हैं, फौरी तौर पर ढक्कन लगाया जाए। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची की गलियों में खतरा, खुले मेन होल्स, बच्चों की जानें निगलने लगे। कराची की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में खुले मेन होल्स शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। अख्तर कॉलोनी की यूसी नंबर 6 के बी सेक्टर और यूसी नंबर 1 के ई सेक्टर में गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं है, जबकि इन गलियों में स्कूल्स और मदारिस भी कायम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं और मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी समेत दीगर सफर करने वाले भी इन खुले मेन होल्स की जद में आते हैं। इंतजामिया तवील मुद्दती मनसूबा बंदी के जरिए इन इलाकों में फौरी इकदाम करें और हर मेन होल्स पर ढक्कन लगाएं ताकि हादसा रोके जा सके। ढक्कन काफ़ी दिन हो गए यहाँ ढक्कन लगा नहीं है, ठीक है ना। आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं इधर, जब देखो नहीं इधर गिरते हैं, कभी गाड़ियाँ फंसती हैं, कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है यहाँ। तो ये प्लीज़ इसके लिए कुछ ना कुछ करें। नुकसान नहीं है क्या, पर गटर हो के ढक्कन नहीं लगाते। हाँ जी, कचरा गलियों में पड़ा हुआ है।
कुछ ख्याल करो हम लोगों के छोटे। रिहायशियों का शिकवा है कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं हुआ। सेक्टर ई गली नंबर 3 के गटर हैं, पिछले जब इन्होंने रोड बनाए थे उस वक्त से ख़राब हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं गिरे भी हैं। यूसी ऑफिस में कंप्लेन भी की है लेकिन ये तवज्जो नहीं दे रहे। 2 दिन पहले इन्होंने 2 गटरों पे ढक्कन रखे हुए, बाकी ये भी इनसे कहा था भी ये रखें। यहाँ पर ढक्कन लगाया जाए, लोग यहाँ पे गिरते हैं बार बार, और जो भी इलाके का नाज़िम है, काउंसलर है, उससे हमारी यही गुजारिश है भाई हमारे इलाके में गटर लगवा दें ढक्कनों के। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पर टाउन की सतह पर मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी जाए और गलियों में ऐसे खतरनाक मेन होल्स की निशानदेही करें ताकि बच्चों की जानें महफूज रहें और इनका मुस्तकबिल भी महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन अमजद खान, मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। नीपा पुल के करीब नाले में गिरने से 3 साला इब्राहिम जाँ बहक। बच्चे की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए गड्ढे ताहाल मौजूद हैं। मजीद हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। रोड पर पानी मौजूद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। उसामा मलिक की रिपोर्ट। इंतजामिया खामोश, खुले नाले मौत बांटने लगे। नीपा पुल के करीब नाले में गिरने से नन्हा इब्राहिम चल बसा। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने एक गड्ढा तो महीनों से बंद ना हुआ। इब्राहिम की तलाश में मुतादिद गड्ढे खोद दिए गए। 24 घंटे गुजरने के बाद भी खोदे जाने वाले गड्ढों को भरा ना जा सका। मजीद हादसात के खदशात में इजाफा। शहरियों का कहना है कि रोड पर पानी मौजूद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इंतजामिया ताहाल गायब, गालिबन किसी नए सानहे की मुंतजिर है। अगर इनका अपना कोई होता तो एहसास होता। देखें अब अगर ऐसा खुदा हुआ है और मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, तो और ये एक इफेक्ट है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है, तो इसको बंद करना चाहिए। देख रहे हैं गड्ढे पहले एक होल खुला हुआ था, काफ़ी होल खोल दिए इन्होंने, तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया क्योंकि हम मार्केट से हैं, यूनिवर्सिटी हैं। क्या ये हुकूमत ऐसे ही कर रही है, बस इसका काम ही यही है खड्डे खोदना। हाँ बस वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए दोस्त कोई ना कोई, आज हम किसी और का बचा गया, कल इनका बचा जाएगा तो उनको एहसास होगा, अभी तो उनको एहसास वगैरह नहीं हो रहा है। जब से ये रोड का काम शुरू हुआ है, ये खड्डे, ये गटर के ढकने, ये वो जब मेन होल खुले हुए हैं, कोई रात को आ रहा है मोटरसाइकिल पे बैक पे, उसकी लाइट नहीं है। हादसे के मकाम पर डिपार्टमेंटल स्टोर बंद। वाक़े का कोई मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। इब्राहिम के अहल खाना का किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए कहना है कि कानूनी कार्रवाई करें भी तो क्या होगा, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। हुक्मरानों को दुनिया और आखिरत में जवाब देना होगा, बस इतना कर लें कि किसी और इब्राहिम के साथ हो। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा, उसामा मलिक, सिटी 21। शहर कायद में ई चालानी का सिलसिला जारी। 37 रोज के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से जायद चालान कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के सहूलत मरकज से 23,000 से जायद शहरियों के राब्ते। 22,000 शहरियों को वार्निंग देने के बाद चालान मुआफ कर दिए गए। महराज अख्तर की रिपोर्ट। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब महंगी पड़ेगी। ई चालान हर हरकत पर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का सिलसिला जारी। 37 रोज से डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर से शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक की कड़ी निगरानी। कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से जायद चालान कर दिए गए। सरकारी गाड़ियां और पुलिस मोबाइल भी कानून के शिकंजे में आ गयी। हैवी ट्रैफिक को भी चालान जारी कर दिए गए। कराची में ई चालान मिलने के बाद शहरियों के ट्रैफिक पुलिस के 11 सहूलत मराकज से राब्ते। 22,000 से जायद शहरियों के चालान माफ कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चौधरी जाहिद का कहना था कि शहरी जुर्मानों से बचने के लिए रॉन्ग वे, ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें। कैमरे की आंख 24 घंटे ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही है। पहला चालान जो माफ करने का मकसद था, लोगों को एजुकेट करना था, और जिसको एक बार चालान मौसूल हो गया है तो दूसरी बार उसे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और आइंदा जो ट्रैफिक कवानीन की बिल्कुल पासदारी करनी चाहिए, वरना उसे डबल जुर्माना पे करना पड़ेगा। चौधरी जाहिद के मुताबिक सहूलत सेंटर से ज्यादातर शहरियों ने चालान माफ कराने की दरख्वास्त की। पुलिस हुकाम की जानिब से बनाई गई कमेटी ने तमाम दरख्वास्तों का बगौर जायजा लिया। 22,000 शहरियों के चालान माफ, जबकि 1,000 दरख्वास्तें जेर गौर हैं। 11 मुकामात पर सहूलत सेंटर कायम किए गए जहां लोग किसी भी चालान के मुतालिक अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पहला चालान माफ़ है, तो अभी तक 23,000 से ज़्यादा लोग वहां अप्रोच कर चुके हैं, जिनमें से 22,000 ने जो है पहला चालान माफ़ करने की दरख्वास्त दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जिन शहरियों के चालान माफ किए गए हैं, इन्हें वार्निंग दी गई है कि अगर आइंदा कानून तोड़ा तो डबल जुर्माना न होगा। कैमरा टीम के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। शहर में दाखिल होने वाली इंटरसिटी बसों के खिलाफ ई टिकट जारी। सोहराब गोठ या कराची बस टर्मिनल की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले इंटरसिटी बसों के ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर बस मालिकान और ड्राइवर्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक इंटरसिटी बसों को सिर्फ सोहराब गोठ और कराची बस टर्मिनल तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। शहर के अंदर इंटरसिटी बसों का दाखिला ट्रैफिक रुकावट और हादसात का सबब बनता है।
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को मुकर्ररा टर्मिनल्स के इस्तेमाल की सख्त हिदायत जारी की गई हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद सख्त इक़दाम के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। महकमा चार्ज पार्किंग की शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मशिक सेंटर, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। मुतअद्दिद अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महकमा चार्ज पार्किंग की शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। मुतअद्दिद अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक आई और के समेत खदीजा मार्केट के अतराफ बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का आगाज हो गया। सब इंजीनियर अली रजा कहते हैं कि 1 लाख स्क्वायर फुट पेवर ब्लॉक और 100 स्ट्रीट लाइट्स के पोल मंसूबे का हिस्सा हैं। 20 बरस बाद शुरू होने वाले तरक्याती कामों से आगाह करेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। में तरक्याती कामों में तेजी आने लगी। ब्लॉक के में फ्लैटों का जाल और ब्लॉक आई में 500 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल खतीजा मार्केट। इन ब्लॉक्स के मकीन गुज़िश्ता 20 बरसों से पानी की किल्लत, सीवरेज के नकारा निजाम और टूटी फूटी सड़कों से सख्त परेशान थे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने इन मसाइल के हल के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इंशाल्लाह जो कौसर न्याज़ी कॉलोनी है या जो खंडू कोट है, उसके ऊपर भी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वहाँ पर जो छोटी गलियां हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का काम होगा। जो यहाँ के मकीन थे वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो सीवरेज के हवाले से खासे परेशान थे। सबसे पहले हमने सीवरेज के मसले को हल किया है। बैक साइड के ऊपर भी सीवरेज का काम शुरू हुआ है जो ज़ियाउद्दीन की तरफ है। खतीजा मार्केट के दुकानदारों का कहना था कि वो खती रकम टैक्स अदायगियों की सूरत में अदा करने के बावजूद बुनियादी मसाइल से दो चार थे, मगर अब उम्मीद हो चली है कि इन्हें रिलीफ मिलेगा। कोई 30-35 साल से नॉर्थ नाज़िमाबाद में किसी किस्म की कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था। हमने आने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो सीवरेज का किया, और ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोड़ों रुपए के जो अब टाउन ने अपने पैसों से ये सारे मसले हल किए। हमारे पास 4 कच्ची आबादियाँ, खंडूगोट, मूसागोट और वहाद कॉलोनी और कौसर न्याज़ी, और इन गलियों के अंदर इंशाल्लाह हम पेवर लगवाएंगे तो हम अपनी यूसी को इंशाल्लाह एक बेहतरीन यूसी बनाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के अमले का कहना था कि टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान की हिदायत पर तमाम अमूर पर तेजी से काम जारी है, जो कि जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस के समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। में मेन होल में गिरकर नन्हे इब्राहिम के जाँ बहक होने का मामला अदालत पहुँच गया। शिरकी की अदालत में मेयर और टाउन चेयरमैन गुलशन के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मेट्रो में बच्चों के गिरने समेत इमरजेंसी सूरत हाल में कारकर्दगी से मुतल्लिक दरख्वास्त। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, MD कराची वाटर कॉर्पोरेशन नाजिम गुलशन इकबाल टाउन को फरीक बनाया गया है। साबिक सदर आरिफ अलवी और खानदान के 12 अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का केस। हाई कोर्ट ने NCCA तफ्तीशी अफसर को दरख्वास्त गुजारों का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजहबी मुनाफरत के इल्जामात पर अज खुद कार्रवाई करने पर NCCA पर बरहमी का इजहार किया। वफाकी अदारे से रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन में इजाफा न करने के खिलाफ दरख्वास्त। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को तैयारी के साथ पेश होने की हदायत कर दी। चरण बॉर्डर से कराची चर्च की तरसील करने वाले 2 मुल्जिमान को सजा। मुल्जिमान बैनुस्सूबाई मनशियात गैंग का हिस्सा निकले। इंसदादे मनशियात अदालत ने मुल्जिमान इमदाद हुसैन और परवार शाह को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान पर फीकस 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। महंगाई में कमी की रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 2 माह बाद 1,69,000 की सतह बहाल। तहम कारोबारी इख्तिताम पर मार्केट मंदी का शिकार हो गई। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेजी इख्तिताम पर मंदी में तब्दील। मुल्क में महंगाई में कमी की रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार का आगाज मस्बत जोन में किया। सरमायाकारों ने हिस्सेस की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। ट्रेडिंग के आगाज में KSI 100 इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान कारोबार इंडेक्स 1,69,299 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक भी गया। ताहम सेशन के दौरान हिस्से में तेजी बरकरार न रह सकी और मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स कमी के साथ 1,67,642 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,67,445 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में
इब्तिदाई तेजी महंगाई में कमी, मुआशी एतमाद और बैन अल-अक़वामी मार्केट रुझानात के बाइस थी। ताहम मुनाफा समेटने के रुझान और सरमायाकारों के मोहतात पॉलिसी ने इख्तितामी सेशन में दबाव पैदा किया। मार्केट अपने सेकंड हाई पर है, तो इसकी वजह ये है कि इन्वेस्टर का जो है वो इत्मीनान भी बहाल हुआ है। दूसरा, थोड़ा सियासी हालत जो है वो मुस्तकम होना शुरू हो गए। गवर्नमेंट को जो असम्बली में जो है पूरी 2/3 की अक्सरियत हासिल है, इससे भी मार्केट को थोड़ा सा इत्मीनान हासिल हुआ है। दूसरा ये कि आजकल में नोटिफिकेशन जो इशू होने जा रहा है डिफेंस का, तो उससे भी मार्केट को बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट के नंबर भी अच्छे जा रहे हैं, इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी पॉजिटिव। गुज़िश्ता रोज़ भी इंडेक्स में नुमाया तेजी देखी गई थी, जब 100 इंडेक्स 1384 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना एक बार फिर सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $27 सस्ता होकर $4,218 फी औंस पर आ गया, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक तोला सोना 2,700 रुपये कमी से 4,44,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,315 रुपये सस्ता होकर 3,80,797 रुपये का हो गया। चांदी ने 41 रुपये इजाफे से पहली बार 6,004 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी। आर्ट जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 33वें रोज़ आर्ट्स काउंसिल में फीडिंग बाउंड्रीज नुमाइश की तख्लीक और जिद्दत का ऐसा इम्तजाज पेश किया जिसने शायकीन फ़न को अपनी जानिब खींच रखा। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। कल्चरल फेस्टिवल के 33वें रोज़ आर्ट्स काउंसिल तख्लीकी इजहार से रोशन हो गई। फीडिंग बाउंड्रीज आर्ट नुमाइश ने पेंटिंग, कोलाज और जदीद फ़नून के इम्तजाज के साथ शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने किया। सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकार मुनीब भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने नौजवान आर्टिस्टों की शिरकत को काबिल तहसीन करार दिया।